Welcome back, students. Today we are going to discuss the civics topic, civics chapter 1, that is power sharing. Okay, so in this chapter we are going to discuss about the power sharing, means the powers given by the government to their citizen. But how it is different, because we are going to discuss in this chapter about the two countries, the Belgium and the Sri Lanka. These two countries, in these two countries the citizens are speaking different languages, have their own cultures. So how the government has given the power to these two different group of peoples, we are going to discuss this in this chapter. Okay, so first we are going to discuss about the Belgium. So see, story of Belgium. What happened here? See, Belgium is a small country in Europe. It is located in Europe with a population of over 1 crore, about half the population of हरियाणा. मीन्स अपने इंडिया में जितना एक स्टेट की व्हाट वी कैन से पॉपुलेशन है, उतना एक पूरी कंट्री का पॉपुलेशन है वहाँ पे. Okay, of the country's total population, 59% speak Dutch language. Means out of 100%, 59% speak Dutch language and 45 people speaks French. Okay, and 1% is remaining, so 1% speak German. See the map here. See the yellow part, it is the Belgium, and the yellow part that speak Dutch, means that 59%, and these the whole red they speak French, means that 40%. And see this right side, this red in shaded part, they are the German speaking, means that 1%. Okay, and this orange, it's a Brussels, it's a capital of Belgium, Brussels. Okay, so yeah, see the last line, yeah. See, the minority French speaking community was rich and powerful, means जो 40% जो 40% of group of people था, they were rich and powerful, so they got the power in their hands. Okay, so they got the benefits of economic development and education. This created tension between the Dutch speaking and the French speaking communities. मतलब यहाँ से क्या हुआ, वॉर स्टार्ट हो गया ड्यूरिंग द 1950s and 1960s. Okay, see accommodations in Belgium. Now see, in Belgium the government handled the community differences very well. Between 1970 and 1993, Belgian leaders amended their constitution 4 times. See, amended their constitutions मतलब कि changes आए constitutions में 4 times, and they came up with a new model to run the government. As we know कि मतलब वहाँ पे French and the स्पेनिश के बीच में जो भी लैंग्वेज थी उनके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वॉर आ गया. और वॉर आएगी तो कंट्री इतनी स्मूथली नहीं चल पाएगी. टू रन द कंट्री स्मूथली दे केम विद द चेंजेस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस. क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशंस आए थे, क्या क्या चेंजेस आए थे? सी द फर्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, मीन्स द गवर्नमेंट विच रन्स द होल कंट्री. ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी लोग होंगे तो वहाँ पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग हर ग्रुप के इक्वल मेंबर्स होंगे. मतलब सपोज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 20 मेंबर्स हैं तो 10 किसके होंगे, डच साइड के होंगे, और 10 फ्रेंच साइड के होंगे. क्लियर? Some special laws require the support of the majority of members from each linguistic group. Linguistic group means the group which speaks different languages. Okay. Thus, no single community can make decision unilaterally. Means कोई मतलब अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ पीपल्स है फ्रॉम ईच ग्रुप, तो सो द डिसीजन विल बी म्यूचुअल to everyone, right?
The second point, the state governments are not subordinate to the central government. मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, वो अपना काम करेगा. थर्ड वन, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट in which both communities have equal representations. सी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग वर्क करेगी और जो कैपिटल है, ब्रुसेल इज़ द कैपिटल ऑफ दैट कंट्री, सो ब्रुसेल की जो गवर्नमेंट होगी वो अपना अलग वर्क करेगी. ओके, विच हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. सी अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या थी? द कम्युनिटी गवर्नमेंट. मतलब कि हर कम्युनिटी का अपना अपना गवर्नमेंट होगी. इज इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. एज वी नो देयर वर 3 लैंग्वेजेस वे आर स्पीकिंग, Dutch, French and the German. Okay, Dutch was 59%, French 40% and German 1%. Okay, the government has a power regarding culture, educational and language related issues. So ये जो गवर्नमेंट होगी वो किस में वर्क करेगी? कल्चर से रिलेटेड इश्यूज़ में, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ में वर्क करेगी. ओके, see the last line, the Belgium model was very complicated but it helped to avoid civic strife between the two major communities. मतलब कि ठीक है, इसको थोड़ा रन करना डिफ़िकल्ट टास्क था, बट टू रन द कंट्री स्मूथली विदाउट एनी वॉर्स, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, इट वॉज नेसेसरी ऑल्सो. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ बेल्जियम. नाउ कम टू द स्टोरी ऑफ श्रीलंका. व्हाट हैपेंड? See, now let's take a situation of another country, Sri Lanka. It is an island nation having a population of 2 crores, means more than Belgium, right? Or you can say double the Belgium. Yeah, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are Sinhala. मतलब वहाँ पे क्या क्या थे? बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन थे. यहाँ पे क्या है? सिन्हाला है जो 74% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, एंड द तमिल स्पीकर्स विच इज़ द 18%. ओके, एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड द इंडियन तमिल्स. सी मेजर ग्रुप्स वेयर 2, सिन्हाला और तमिल. But among Tamil, there were 2 subgroups, that is Sri Lankan Tamils and the Indian Tamils. See, the map is also there. See, this is a Sri Lanka. The orange part is Sri Lankan Tamils. Okay, the yellow, the major part you can see. This is Sinhalans, which is a 74%, and okay. And the dark brown you can see the dark brown in the middle, that is the Indian Tamil, and some are there Muslim also. See, जहाँ पे कुछ spots जैसा बना हुआ है ये लाइट ब्राउन में, that is Muslims. Okay, so see, yeah, see the last line, in Sri Lanka the Sinhala community enjoyed the bigger majority and imposed its will on the entire country. क्योंकि सिन्हाला क्या थी? मेजर कम्युनिटी, तो उसने पूरा ओन करके रखी थी कंट्री को. तो वो क्या दूसरी वाली कम्युनिटी को दबाव बना के रखती थी. यू कैन से एज अ डिक्टेटरशिप टाइप्स. ओके, नाउ सी, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गई थी 1948. द सिन्हाला कम्युनिटी वॉज इन द मेजॉरिटी, सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पे क्या था? इसका 74% था, तो एज अ मेजॉरिटी इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना दिया खुद से, विदाउट आस्किंग द अदर पीपल्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी. They also followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. See, the major line यहाँ पे मेन लाइन क्या बोल रही है कि जो सिन्हाला ग्रुप ऑफ पीपल थे उन्होंने खुद से ही फॉर देयर ओन बेनिफिट्स यूनिवर्सिटी पोजीशंस, मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन, एंड द गवर्नमेंट जॉब्स खुद के लिए ही बनाए.
बाकी कंट्री के दूसरे पीपल्स के बारे में नहीं सोचा. So these measures taken by the government gradually increased the feelings of alienations among the Sri Lankan Tamils. Sri Lankan alienation among the Sri Lankan Tamils मतलब कि unwanted सी feeling आ गई उनके अंदर. ठीक है. Sri Lankan Tamils felt that constitution and government policies denied them equal political rights. उन जो तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स, उनके अंदर क्या फीलिंग आ गई कि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं टूवर्ड द गवर्नमेंट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स में डिफ्रेंसिएशन हो रहा था एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, ड्यू टू विच द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ बिकम पुअर. उनके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, है ना. किसके बीच में, सिन्हाला पीपल के बीच में और द तमिल्स पीपल्स के बीच में क्या हुए, डिफरेंसेस आने लगे. नाउ श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब इनके बीच में स्ट्रगल्स आया, कॉन्फ्लिक्ट आया कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की क्या होगी. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब. ओके, बट देयर डिमांड वॉज रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट. बट उनकी डिमांड क्या होती, बार बार गवर्नमेंट इग्नोर कर रही थी. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज turned into widespread conflict and turned into a civil war. तो ये अब कोल्ड वॉर धीमे धीमे करके क्या एक सिविल वॉर में चेंज हो गई. एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. अब लड़ाई हुई तो दोनों साइड से लोग मारे गए. मैनी फैमिलीज वेर फोर्स्ड टू लीव द कंट्रीज एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स. ओके, अब वॉर हुआ तो लोग का घर छूट गया, फैमिलीज छूट गई. द वॉर एंडेड इन 2009 एंड कॉज अ टेरेबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ कंट्री. सो अब ये वॉर ख़त्म हुई बट द क्या हुई, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो गई, पीपल्स की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई. ओके, सो सी वॉट वी हैव स्टडीड इन श्रीलंका, they have not taken, the government has not taken any step to resolve the conflict between the two communists or the two groups. But on the other hand, we can see the Belgium government has taken some step to resolve the conflict between the two groups and to run their country smoothly. So see what you have learned from the stories of Belgium and Sri Lanka. Both the countries are democracies but they dealt differently with the concept of power sharing. दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या थी, प्रॉब्लम्स थी, बट उन्होंने क्या किया, सॉल्व किया अपने तरीके से. सेकेंड पॉइंट, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल only by respecting the feelings and interests of different community and regions. सी बेल्जियम में क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या एक मेजर स्टेप लिया ताकि जो कंट्री हो वो स्मूथली रन करे और किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो. ओके, दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. सो कंट्री के पीपल ने भी उस डिसीजन का रिस्पेक्ट किया और उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े. But on the other hand, Sri Lanka shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. But on the other hand, क्या हुआ, dominate चलता रहा of the major community, तो क्या हुआ, country smoothly run नहीं कर पाई. Okay, the next is why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायर होती है, क्यों ज़रूरी होती है. सी पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. एज वी कैन सी बेल्जियम में पावर शेयरिंग चला तो वहाँ पे क्या हुआ, पीपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ एंड दे कैन
they can be known as a one country. But on the other hand श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, so there was a war. so इसलिए डिज़ायरेबल होती है, मतलब ज़रूरत होती है. The second point, the second reason is that a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. Means सेम चीज़ वो उनकी जो लाइफ भी होती है वो उससे इफ़ेक्ट भी होती है. ओके. और पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, मतलब उनको एक हक होता है जानने का कि उन पे कैसा गवर्नमेंट काम करेगी. सो दिस आर द राइट्स टू नो बाय द पीपल. Okay, so students, today is up to here only, and this thing you don't have to write in your notebook. It is just for understanding. Okay, so thank you.